Hello everyone. A very warm welcome to everyone in this today's session. I know it's been a very long time ago. I haven't post any video about Macbeth or about Macbeth. Okay, so yeah, I have come with yet another scene of Macbeth. That is Act One, Scene Two this time. As we know, Act 1, Scene 1 was just a play of kid. Okay, it was very small, right? But it was equally significant as the other scenes, isn't it? It was equally significant as the other scenes. If we want, if a teacher want, he can arouse 10 questions from that particular Act 1, Scene 1. If a teacher want, okay, if he or she desire, so he can arouse approximately 10 questions from that Act 1, Scene 1 individually. That scene is very short, but it is equally essential. It doesn't mean that it is very brief, so it do not have any very good information. No, it is having a very good information. Okay, uh, that phrase you have read about Act 1, Scene 1, right? That phrase which set the tone of whole Act 1, Scene 1. Okay, that motto you have read, that fear is foul and foul is fear. That is extremely important. Okay, question will definitely come from that particular notion, from that particular motto. That is, fear is foul and foul is fear. Hover through the air and flittery airs. Okay, what was the motto of the witches? That fear is foul and foul is fear. Hover through the fog and flittery air. This was the theme. This was the motto of this whole Act 1, Scene 1. Okay, so that is extremely important. You need to remember. Okay, now let's move to the Act 1, Scene 2 of Macbeth. Right, as we know, who is Macbeth? Obviously, a brave general. Okay, he's a brave, ambitious general and a man of action. Why he's known as man of action? Man of action means he immediately take action. He immediately go and fight with the pupil. Okay, that's why he's known as the brave general. And you will see in Act 1, Scene 2, the titles are given to him is the brave Macbeth and the Bellona's bridegroom. These are some titles given to him in Act 1, Scene 2. You will see right now here. He is said to be the great Macbeth, the brave Macbeth. Okay. And the next is very important, that is Bellona's bridegroom. What do you mean by Bellona's bridegroom? Who is Bellona? Bellona is a Greek goddess of war. She's a Greek goddess of war. Okay, so who is very brave and smart. Okay, so Macbeth is said to be the Bellona's bridegroom. Okay, means he's equally brave and strong as the Bellona. Right. So let's move with the Act 1 and Scene 2 of Macbeth. Here, let's move further. Okay. If you're unable to see the text over here, you could use your own book of Macbeth. Okay. Now, what happened in Act 1, Scene 2? Here, Duncan gets a very good news that the Macbeth, the brave Macbeth, he has killed the MacDonald. Now, who is this MacDonald? MacDonald is you could say he is the king of Norway. Okay, who is MacDonald? He is the king of Norway. Okay. And who is Duncan? He is the king of Scotland. So there is a war, there is a conflict between king of Norway and the king of Scotland. Who is king of Scotland? King Duncan, obviously. Who is king of Norway? That is King who? King MacDonald. Okay.
Now MacDonald got crazy. He got ambitious, like he got rebellious. Rebellious means he wanted to take revenge. Okay, he got furious. So since he got furious, so Macbeth, the brave Macbeth, he has now killed the MacDonald. So through this, you could imagine how brave Macbeth is, how brave he is, that he has killed the rebellious, the, you could say, the devilious, okay, who become a devil now, who become a beast now. He has killed that beast. He has killed that MacDonald. Who? Macbeth, right? So he has defeated MacDonald, means he has defeated the Norway. Okay, there is a conflict between the Norway and the Scottish people, right? So Scottish people means Macbeth defeated MacDonald, means who? The Norwegian alliance, right? And he got the title of Thane of Cawdor. First of all, he killed the Thane of Cawdor. Okay, this is the Thane of Cawdor who cheated. Firstly, he was with King Duncan, right? The Thane of Cawdor, firstly he was with King Duncan. Then he cheated King Duncan. He goes near to MacDonald. When Macbeth about to know that this fellow, that is the Thane of Cawdor, has cheated King Duncan, so he has killed that Thane of Cawdor as well. So Macbeth has killed two fellows, the King of Norway, that is MacDonald, and the Thane of Cawdor, right? Then this Duncan, since Thane of Cawdor was the man of whom? King Duncan, but he cheated. Okay, उसने गद्दारी कर ली. So what happened? So this Duncan, he gave the title of Thane of Cawdor to whom? To Macbeth. Are you understanding? I hope. So now Macbeth is a Thane of Cawdor. Okay, because the King Duncan has flipped this title, has switched this title from the King of Cawdor to Macbeth. Okay, to the Thane of Cawdor, sorry. From the Thane of Cawdor to Macbeth. Now this is like the Macbeth is he is the Thane of Cawdor. Okay, so there is the rising fortune of Macbeth now in the scene. Okay, he is highlighted in the scene, and as I told you, he is referred here as the worthy gentleman and the brave Macbeth, and one more very important title, that is Bellona's bridegroom. Very important, never forget that. Okay, it can come in your MCQ types question. That what was the titles given to means what are the reference given to Macbeth? So the first one was the worthy gentleman. Okay, then the brave Macbeth, and third is the Bellona's bridegroom. Okay, so here this scene this scene is equally important because this is connected with Act 1, Scene 3 as well. There we will meet with the three witches. Okay, now listen carefully. We haven't seen Macbeth in Act 1, Scene 1, right? Now we will not see Macbeth in Act 1, Scene 2 as well. Okay, Macbeth will not come in Act 1, Scene 2, but his talk will be done by the sergeant and the Duncan. Okay, so here we go with the Macbeth. Okay, we'll see Macbeth in Act 1, Scene 3, not in Act 1, Scene 2. Okay, so let's see. Here the scene takes place in a camp near forest. Now, what is forest? फॉरेस्ट इज़ अ टेंट लाइक स्ट्रक्चर. एक टेंट की तरह स्ट्रक्चर होता है जैसे कि कोई लड़ाई होती है. जब कभी भी लड़ाई होती है तो राजा वगैरह उस लड़ाई के पास वाले एरिया में रहते हैं क्या, टेंट वगैरह के स्ट्रक्चर बनाकर. यू हैव सीन इन दस लाइक मूवीज आई होप. ओके, नाउ अलार्म विदिन. व्हाट यू मीन बाय अलार्म? देयर इज अ ट्रम्पेट कॉल
ओके, देयर इज अलार्म। पहले अलार्म नहीं बजते थे कि राजा पधार रहे हैं, इस तरीके के, है ना, तो वही यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है। नाउ एंटर डंकन, मैलकॉम, डोनाल्ड बेन एंड लेनॉक्स। नाउ so yeah, let's start. Okay, so as he told you, there's an alarm, there's a sound of a trumpet call. Okay, and there enter King Duncan, right? They enter King Duncan. Who is King Duncan? No need to tell you, the king of Scotland, right? He's the king of Scotland. Next, Malcolm and Donald Wayne. Now, who is these two fellow, Malcolm and Donald Wayne? Who are these two guys? They both are the sons of King Duncan. Okay, they both are the son of King Duncan. Okay, next, Lennox. Lennox is a Thane of Scotland. Okay, he is the Thane of Scotland. Next, with attendants. Attendants means means rest of the soldiers. With little bit of the soldiers, they have came there, and there King Duncan meet with a bleeding sergeant. Now, who is bleeding sergeant? What is the meaning of sergeant? Sergeant means captain. Okay, sergeant means a high-ranking captain, right? So he is bleeding. His condition is pathetic. He is bleeding. खून निकल रहा है उसके, मतलब खून से सना हुआ है पूरा, ठीक है। Now, Duncan कहते हैं, Duncan says, what bloody man is that? He can report as seemeth by his plight of the revolt the newest state. Who is this bleeding man? मतलब ये खून से सना हुआ आदमी कौन है? Bloody का मतलब है bleeding, ठीक है। Bloody का मतलब है bleeding man, bleed कर रहा है जो, okay, जो bleed कर रहा है उसका मतलब, okay. Next, what bloody man is that? ये खून से सना आदमी कौन है? He can report as seen by his plight of the revolt the newest state. इसकी पथेटिक कंडीशन देखने इसकी, ओके, प्लाइट का मतलब होता है पथेटिक कंडीशन, बहुत दयनीय कंडीशन, बहुत दया वाली, मतलब बहुत बुरी कंडीशन, तो बिल्कुल खून से सना हुआ है वो। तो किंग डंकन कहते हैं कि इसकी इतनी ख़राब कंडीशन देख के हम पता लगा सकते हैं कि अभी रिवॉल्ट में क्या चल रहा होगा, मतलब हम पता कर सकते हैं कि अभी रिवॉल्ट में कितना भारी युद्ध चल रहा है, बिकॉज द सार्जेंट इज ब्लीडिंग। जो कैप्टन है ये, वो ब्लीडिंग कर रहा है, ब्लड ब्लीडिंग कर रहा है, ओके, उसके ब्लड निकल रहा है, ओके, द ब्लड इज ओजेज आउट फ्रॉम हिज बॉडी, एंड थ्रू दिस कंडीशन ऑफ दिस सार्जेंट, थ्रू दिस कंडीशन ऑफ दिस कैप्टन, वी कैन डिटेक्ट दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आर रिवॉल्ट, राइट। क्या कंडीशन है रिवॉल्ट की? मतलब जो रिवॉल्ट है वो कैसा चल रहा है? खतरनाक चल रहा है, ना एक टीम झुक रही है ना दूसरी टीम झुक रही है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब मैलकॉम बोलता है, हु इज मैलकॉम? सन ऑफ किंग डंकन, ठीक है। ही सेज, दिस इज द सार्जेंट who like a good and hardy soldier fought against my captivity. Hail brave friend means, अब मैलकॉम कह रहा है कि ये सार्जेंट है, ये कौन है? ये कैप्टन है, ओके, ये कैप्टन है हमारी लाइक टीम के, हमारी वॉर के, जो कि बहुत ही ब्रेव और बहुत ही ताकतवर इंसान है। गुड एंड हार्डी का मतलब है, हार्डी का मतलब होता है ब्रेव, ओके, द मीनिंग ऑफ हार्डी इज ब्रेव, बहुत ही ब्रेव पर्सन है ये, बहुत ही ब्रेव पर्सनैलिटी है, बहुत ही ब्रेव सोल्जर है ये, जो कि जिसने फाइट किया अगेंस्ट माई कैप्टिविटी। अगेंस्ट माई कैप्टिविटी का मतलब है मुझे छुड़ाने के लिए इस सोल्जर ने, इस कैप्टन ने मुझे छुड़ाया है, अपनी ब्रेवरी दिखाई है इसने, ठीक है, इसकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ, ओके। अगेंस्ट माई कैप्टिविटी का मतलब होता है, अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट बोलते हैं इसे, जब ये डॉट अगर इस तरीके कॉमा लिखी कोई भी वर्ड लिखा होता है आगे तो उसे हम अगेंस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज शेक्सपियर्स इंग्लिश, ओके, शेक्सपियर की इंग्लिश है ये, तो थोड़ा सा यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो मैलकॉम क्या कह रहा है? मैलकॉम कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और हार्डी सोल्जर है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव सोल्जर है, जिसने मुझे बचाया है, जिसने उन इनेमीज से लड़कर मुझे बचाया है। मैलकॉम मतलब अपने आप को कह रहा है मुझे बचाया है। हेल ब्रेव फ्रेंड, say to the king the knowledge of the brawl as thou didst leave it.
हेल ब्रेव फ्रेंड, हेल मीन्स वाह वाह, वाह वाह करना, ठीक है, किसी की तारीफ करना। हेल का मतलब होता है तारीफ करना किसी की। ओके, वाह तुम्हें तारीफ है, मतलब तुम बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्रेव पर्सनैलिटी हो, मतलब मैलकॉम कह रहा है किससे, सार्जेंट से। ओके, हेल ब्रेव फ्रेंड, तुमने बहुत ही ताकत से लड़ाई करी है। से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉल, ब्रॉल का मतलब होता है वॉर, ठीक है, वॉर युद्ध। तो किंग डंकन को बताओ कि लाइक वॉर की कैसी कंडीशन है, लड़ाई कैसी चल रही है जब तुमने वॉर को छोड़ा था। व्हेन दाओ, अब दाओ का मतलब यू होता है, ये हम सबको पता है राइट, क्योंकि हमने अब तक 2 प्लेस पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट वन वॉज द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द नेक्स्ट इज दिस मैकबेथ, राइट। सो हम अब पढ़ चुके हैं ये दोनों प्लेस, राइट। तो हमें दी दाओ, ओके, ये सारी वर्ड्स पता होने चाहिए कि दाओ का मतलब होता है यू। सो मैलकॉम कह रहा है आई एम सॉरी, मैलकॉम कह रहा है कि जब तुमने युद्ध को छोड़ा था, जब तुमने लास्ट टाइम युद्ध को देखा था तो कैसी कंडीशन थी, प्लीज़ किंग को बताओ सार्जेंट। देन सार्जेंट कहता है, अब सार्जेंट पूरा वॉर को डिस्क्राइब करेगा, पूरी तरीके से वॉर को डिस्क्राइब करेगा, बहुत ही लंबी स्पीच बोलेगा अब सार्जेंट, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। Doubtful it stood. Okay, as 2 Spanish swimmers that do cling together and choke their art. मतलब क्या कह रहा है, डाउटफुल stood मीन्स रिजल्ट जो है वो अभी डाउटफुल है, अभी हम रिजल्ट के बारे में पता नहीं कर सकते। जो रिजल्ट है मतलब अभी बिल्कुल टक्कर की लड़ाई चल रही है। ओके, दोनों लोग मतलब बिना थके बिना कुछ हुए लड़ रहे हैं। ओके, एज टू स्पेंट स्विमर्स, स्पेंट का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, थका हुआ। ओके, जैसे कि 2 थके हुए स्विमर्स, ओके, एक दूसरे को क्लिंग टुगेदर, क्लिंग मीन्स दोनों को पकड़े होते हैं, क्लिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़े हुए। ओके, जैसे कि 2 थके हुए स्विमर्स, जैसे 2 स्विमर्स, 2 तैरने वाले तैर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। क्यों पकड़ रखा है, जिससे एक दूसरे की आर्ट का मतलब होता है जिससे एक दूसरे की स्विमिंग को ख़राब कर सके। तो ऐसा ही बताना चाह रहा है सार्जेंट कि जो युद्ध है वो अभी बहुत टक्कर का चल रहा है, दोनों एक दूसरे का युद्ध खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी, टुडे आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पेन इन माई थ्रोट, सो यू विल हियर दीज साउंड्स इन बिटवीन, ओके, coughing and toughing type of sounds. Okay, now the merciless MacDonald आ गया, ये कौन, the antagonist of the play of the drama. He is the antagonist of the drama. ये कौन है एंटागोनिस्ट। अब मुझे एंटागोनिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही बता रखा है कि हु इज़ प्रोटोगोनिस्ट एंड हु इज़ एंटागोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट होता है द मेन हीरो, द मेन पर्सनैलिटी ऑफ द प्ले, एंड एंटागोनिस्ट होता है द हु, द विलेन ऑफ द प्ले, ठीक है, क्या, विलेन। तो जो मैकडोनाल्ड है, ओके, मैकडोनाल्ड भी पढ़ते हैं, मैकडोनाल्ड भी पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हैं। ओके, जो मैकडोनाल्ड है वो कौन है, विलेन है। ओके, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मर्सीलेस मैकडोनाल्ड है, ओके, जो मर्सीलेस मैकडोनाल्ड है, ही like worthy to be revealed for to that the multiplying villains of nature do swamp upon him from the Bastion Isles. Okay, तो वो जो लाइक मैकडोनाल्ड है, ऐसा लग रहा है कि उसने अपने अंदर सारी नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली हो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक नेगेटिविटी का मैग्नेट हो और सारी नेगेटिविटी उससे अट्रैक्ट होकर उससे चिपक रही है। क्यों, क्योंकि उसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, उसने बैस्टन आइल्स को बुला लिया है। ओके, बैस्टन आइल्स को उसने बुला लिया। तो स्वाम का मतलब होता है जैसे कि गंदगी में मक्खी, जैसे कि गंदगी में हाउस फ्लाइज घूमती है ना, वैसे ही उस मैकडोनाल्ड में के पास सब बुराइयां घूम रही हैं, मतलब उसके अंदर पूरे संसार की बुराई आ गई है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो उसने क्या कर रहा है, उसने वेस्टर्न आइल्स को बुला लिया है। वेस्टर्न आइल्स होती हैं
जो आइसलैंड्स के ग्रुप होते हैं वेस्टर्न कोस्ट, जो स्कॉटलैंड का वेस्टर्न कोस्ट है उस पे जो आइसलैंड है उसमें जो पीपल रहते हैं, जो वॉरियर्स रहते हैं, उस उन्हें इस मैकडोनाल्ड वर्ल्ड ने बुला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, ऑफ कर्न्स एंड येलो ग्लासेस इज सप्लाइड एंड फॉर्च्यून ऑन हिज डैम्ड क्वेरल स्माइलिंग। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं, और उसने कर्न्स को भी बुला ली। कर्न्स वो आर्मी होती है जो पैदल चलती है, ठीक है, जो पैदल से आ रही होती है, जैसे हम लोगों ने देखा है ना, भाला वगैरह लेकर वो आ रहे होते हैं पैदल से। ओके, तो ऐसी जो कर्न्स होते हैं वो पैदल चलकर आ रहे हैं। एंड गैलो ग्लासेस मतलब वो जो सिर्फ गैलो ग्लासेस का मतलब होता है जो आयरन के जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, जो हैवी सोल्जर्स होते हैं, बहुत ताकतवर सोल्जर्स होते हैं, वो आ रहे हैं। दिस वांट मनी, जो ये गैलो क्लासेस के लोग होते हैं ये सिर्फ पैसा चाहते हैं। ओके, कि हम लोगों को हराएंगे और आपको हमें पैसा देना होगा। तो इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई जीते कोई हारे, इन्हें सिर्फ मतलब है कि हमें लड़ना है और पैसा लेना है। किससे? मैकडोनाल्ड वर्ल्ड से। ओके, तो ये कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस को किसने? मैकडोनाल्ड वर्ल्ड ने बुला लिया है। एंड द फॉर्च्यून ऑन हिज डैम्ड क्वेरल स्माइलिंग शो हेड लाइक अ रिबेल्स वोर बट ऑल्स टू वीक लाइक उसने मैकडोनाल्ड वर्ल्ड ने ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने फॉर्च्यून को, अपने गुड लक को एक अपना प्रोस्टिट्यूट बना दिया हो। ओके, वोर का मतलब होता है, वोर का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट मीन्स यू कुड सी ओवर देयर। ओके, प्रोस्टिट्यूट इज नॉट अ गुड वर्ड। ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वोर ने, जैसे कि मैकडोनाल्ड वर्ल्ड ने किस्मत को, जैसे कि मैकडोनाल्ड वर्ल्ड ने फॉर्च्यून को अपना प्रोस्टिट्यूट बना दिया हो, अपना वोर बना दिया हो। बट ऑल्स टू वीक, पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक हैं। ओके, फॉर ब्रेव मैकबेथ वेल ही डिजर्व दैट नेम। क्या कह रहा है? क्योंकि ये पर ये जो चीज़ें हैं, जितना भी कुछ कर ले मैकडोनाल्ड वर्ल्ड, कितना भी कुछ कर ले, पर वो हमारे मैकबेथ से नहीं जीत सकता। और मैकबेथ इज़ अ वेरी ब्रेव पर्सनैलिटी। ओके, वो मुझे पूरा विश्वास है। कौन कह रहा है? सार्जेंट कह रहा है। ठीक है, सार्जेंट कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा मैकबेथ जो है वो मैकडोनाल्ड वर्ल्ड को रिवीलियस स्कैवेंजर्स द रिवीलियस एंड द स्टार्विंग मैकडोनाल्ड वर्ल्ड को वो हरा कर रहेगा। कौन? मैकबेथ। ओके, तो यहाँ पे जो है वो सार्जेंट तारीफ कर रहे हैं मैकबेथ की। वेल ही डिजर्व्स दैट नेम। अरे वो डिजर्व करता है इस नेम को, है ना। मैकबेथ, द ब्रेव मैकबेथ, द बेलोनास ब्राइडग्रूम। ओके, ये सारे टाइटल्स को वो मतलब बिल्कुल सही साबित करता है, क्योंकि वो ऐसा है। ही इज द ब्रेव एम्बिशियस पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट इज disdaining fortune with his British head steel, while smoked with bloody execution, like Balor's Minon crabbed out his passage till he faced a slave. Means he's saying that his sword was cutting everyone. मतलब क्या कह रहा है कि उसकी जो तलवार है, मैकबेथ ऐसे लड़ रहा है कि वो उसकी तलवार जो है वो उसके सामने आने वाले हर एक बंदे को, उसके सामने आने वाले हर एक चीज़ को, हर एक दुश्मन को जस्ट काटे चला जा रहा है। ओके, जैसे कि हमने मूवी में देखा है कि वो जो किंग्स होते हैं, ओके, वो ऐसे उसे मतलब आने वाली हर मुसीबत को ऐसे तलवार से अपने काटे चले जाते हैं। यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं कि दैट disdaining fortune with his British head steel, which smoked with bloody execution, like Balor's Minon crabbed out his passage till he faced a slave. मतलब कहना चाह रहा है कि वो अपने आगे आने वाली हर मुसीबत को तलवार से बिल्कुल काटे चला जा रहा है। मैकबेथ जो है वो ग्रेट एम्बिशियस पर्सनैलिटी, वो मतलब अपने आगे आने वाली हर मतलब मुसीबत को तलवार से काटे चला जा रहा है। इतना ब्रेव, मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये सार्जेंट दिखा रहा है कि कितना ब्रेव है मैकबेथ, कितना ज़्यादा ब्रेव है मैकबेथ, और कितना ज़्यादा मतलब एम्बिशियस है। लाइक एम्बिशियस कहते हैं जिसकी इच्छाएं होती हैं कुछ। ओके, बहुत ज़्यादा
अपनी इच्छाओं को किसी भी कीमत पे पूरा कर सकता है। एम्बिशियस का मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, बस अपनी इच्छा पूरी होनी चाहिए, ऐसा है वो। ओके, नेक्स्ट इज विच न शूक हेड्स hence nor bade farewell to him. Okay, so he never never shook his head. उसने अपने हाथ कभी नहीं झुकाए और कभी भी उसने लड़ाई से फेयरवेल नहीं कहा, कभी भी उसने लड़ाई से बाय नहीं की। मतलब वो लड़ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से, मैकबेथ जो है वो पूरे युद्ध को संभाल रहा है। तो यहाँ पे हो गई सार्जेंट की स्पीच। ओके, नेक्स्ट okay, here we go. Till he unseated, okay, him from the nave to the chaps. मतलब जब तक वो मतलब सिर से लेके पैर तक दुश्मनों को काट नहीं देता। ओके, मतलब मैकबेथ जो है वो अपनी तलवार से दुश्मनों को सिर से लेके पैर तक काट रहा है। ओके, नेव का मतलब होता है ये जो नेव होती है हमारी, नेवल एरिया जो हमारी बीच में होता है ना, पेट में, ये है ना। एंड चैप्स मीन्स जो जॉ लाइन होती है, जो हमारा फेस होता है उसे। तो मतलब कहना चाह रहा है कि फेस से लेके पेट तक मैकबेथ जो है दुश्मनों को काटे जा रहा है, काटे चला जा रहा है। एंड फिक्स्ड हैड हिज हेड अपॉन आवर बैटलमेंट्स, और हमारे जो बैटल एरिया है जहाँ पे हमारे स्कॉटलैंड के पीपल लड़ रहे हैं, उनके आगे उन दुश्मनों का सिर फेंक रहा है, उन दुश्मनों का सिर काट काट के फेंक रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे मैकबेथ की ब्रेवरी का डिस्क्रिप्शन है। अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब करो हाउ ब्रेव वॉज मैकबेथ, यही सारे पॉइंट्स लिख देना, विच वॉज सेड बाय द सार्जेंट। ओके, सो दिस वॉज द होल स्पीच सेड बाय द सार्जेंट। नाउ अब कहते हैं किंग। अब किंग क्या कहते हैं? डंकन, ओ वैलिएंट कजन, वर्दी जेंटलमैन। ओ वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब होता है ब्रेव। ओ ब्रेव कजन। अब यहाँ पे कजिन क्यों यूज़ किया गया है? कजिन यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं मैकबेथ जो था वो डंकन का कजिन था। ओके, मैकबेथ और डंकन के बीच में एक दूसरा रिलेशनशिप है कजिन का। ओके, अंकल एंड कजिन का। तो यहाँ से क्वेश्चन 110% आ सकता है एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस में, दैट हु इज टू होम किंग डंकन सेड अ वैलिएंट कजिन, then you will be provided with 4 option and you have to take on the correct option. What is the correct option? Macbeth, right? Macbeth is known as the cousin of Duncan, a valiant cousin. Valiant का मतलब होता है brave, बहादुर। Okay, then Sergeant says just tarry a while. As whence the sun skin his reflection, ship-wrecking storms and direful thunders break. Okay, so from the spring whence comfort seemed to come, discomfort swells. Means सार्जेंट कहना चाह रहा है कि जब हमें लगता है कि अब युद्ध समाप्त होने वाला है, क्योंकि मैकबेथ बहुत अच्छे से लड़ रहा है और मैकबेथ अब उन लोगों को हराने ही वाला है, मीन्स हम जीतने ही वाले हैं, स्कॉटलैंड जीतने ही वाला है, तब डिस्कम्फर्ट अराइज हो जाता है। मीन्स कहना चाह रहा है व्हेंस द सन गेन्स द रिफ्लेक्शन, जब लगता है कि सन जो है वो उग चुका है, जब लगता है कि स्कॉटलैंड का सूरज उग चुका है, मतलब उसका सही टाइम आ गया है। ओके, तभी स्टॉर्म आ जाता है, तभी क्या आ जाता है? तबाही आ जाती है। शिप डूब जाती है उस स्टॉर्म में, उस तबाही में। जब लगता है कि एक अच्छी किरण आ गई है, तो तभी क्या आ जाती है? एक बुरी खबर आ जाती है। ठीक है, सॉरी। सो फ्रॉम द स्प्रिंग व्हेंस कंफर्ट सीम टू कम डिस्कम्फर्ट स्वेल्स, जब लगता है कि कंफर्ट आने वाला है, जब लगता है कि अच्छा टाइम आने वाला है, तो वहीं बुरा टाइम आ जाता है, वहीं डिस्कम्फर्ट, स्वेल मीन्स फूल जाता है, वहीं डिस्कम्फर्ट आ जाता है। ओके, मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क मीन्स लिसन किंग ऑफ स्कॉटलैंड, लिसन किंग डंकन, सुनिए किंग डंकन, सुनिए। मार्क का मतलब होता है लिसन। ओके, मार्क किंग डंकन, मार्क सुनिए। नो सूनर जस्टिस हैड been valors armed, compelled these skipping kerns to thrust their heels
but the Norwegian lord surveying Vantage with flourish armed and new supplies of men begin a fresh assault. Okay. यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो ये जो हैं द किंग ऑफ जो किंग मैकडोनाल्ड, ये जो मैकडोनाल्ड है, ओके, ये क्या कर रहा है, ये और मैन को सप्लाई कर रहा है, और मैन को भेज रहा है, ओके, और मैन को भेज रहा है एक फ्रेश असॉल्ट के लिए, एक फ्रेश हमले के लिए. फ्रेश असॉल्ट का मतलब होता है एक नए अटैक के लिए और लोगों को ये भेज रहा है. कौन? मैकडोनाल्ड. ओके. देन डंकन सेज dismayed not this our captain Macbeth and Banquo means sorry, today is a very pathetic condition of my throat. Okay, now Duncan says dismay had not this our captains Macbeth and Banquo. Okay, अब Banquo भी एक कौन है? Who is Banquo? Banquo भी एक जो है वो what could say, he is the best friend of this Macbeth, and he is also a brave general. Okay, जो Banquo है वो भी एक brave general है. ठीक है. अब डंकन कहते हैं क्या इस चीज़ से हमारी मैकबेथ और Banquo, जो मैकबेथ और Banquo हैं, वो डरे नहीं? क्या इस चीज़ से मैकबेथ और Banquo को डर नहीं लगा? ओके. वो देखना चाह रहा है कि मैकबेथ और Banquo कहीं डर तो नहीं गए, कहीं घबरा तो नहीं गए. देन कैप्टन सेज यस. अब कैप्टन बहुत ही अच्छी तरीके से बोलता है यस, हाँ. ओके, अब जो सार्जेंट है वो कैसे बोलता है, बहुत अच्छी तरीके से देखना. यस, एज स्पैरोज ईगल्स और द हेयर द लोइन, इफ आई से सूथ I may report they were as cannons overcharged with double cracks, so they doubly revolved stroke upon the foe, except they meant to bathe in wrecking wound or memorize another Galthoja. Sorry, Golgotha. Okay, here he want to say that, yes, yes, हाँ, वो डरे थे. मतलब किंग जो मैकबेथ और Banquo हैं वो डरे थे. वो बस इतना ही डरे थे जितना कि ईगल स्पारो से डरती है, जितना कि एक ईगल स्पारो से डरती है, जितना कि एक लॉयन हेयर से डरता है. हेयर मीन्स अ रैबिट. ओके, ओके, वो इतना ही डरे जितना कि एक लॉयन जो है वो स्पारो से डरता है, सॉरी, एक ईगल जो है वो स्पारो से डरती है, और एक हेयर है वो लॉयन से एक लॉयन है वो हेयर से डरता है. मतलब कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं डरे. खुद ही सोचिए, कभी लॉयन जो है वो खरगोश से डर सकता है? कभी शेर खरगोश से डर सकता है? नहीं, है ना. कभी जो ये है स्पारो है, मीन्स कभी जो ईगल है वो स्पारो से डर सकती है? नहीं. तो इसका कहने का मतलब है बहुत इनडायरेक्टली कह रहा है कि बिल्कुल नहीं डरी. मैकबेथ और Banquo बिल्कुल नहीं डरी. ठीक है. अगर मैं सच कहूँ, इफ़ आई से सूथ का मतलब होता है ट्रुथ. अगर मैं सच कहूँ, आई मस्ट रिपोर्ट दे वर एज कैनन्स ओवरचार्ज्ड विद डबल क्रैक. सो मीन्स अगर मैं सच कहूँ, दिस टाइम वी फाउट विद डबल स्ट्रेंथ. मतलब इस समय हम दुगनी शक्ति से लड़ रहे हैं, डबल स्ट्रेंथ से लड़ रहे हैं, डबल पावर से लड़ रहे हैं. और हमारे सोल्जर भी मतलब चाहते हैं, हमारे सोल्जर भी यही चाहते हैं कि हम इन सोल्जर से, जो हमारे अपोजिट टीम के सोल्जर्स हैं, ओके, उनके खून में नहाएं. मतलब हमारे सोल्जर्स भी बहुत एक्साइटेड है और लोगों से लड़ने के लिए कहना चाह रहा है. ओके, यही कहना चाह रहा है कि हमारे सोल्जर्स जो है वो जो आर्मीज है, आर्मी ऑफ दैट नॉर्वे, द आर्मी ऑफ नॉर्वे, उनके खून से नहाना चाहती है. हमारी जो आर्मी है वो नॉर्वे के लोगों के खून से नहाना चाहती है, ये कहना चाह रहे हैं लोग. ठीक है. सो doubly redoubled strokes upon the foe, except they mean to battle in wrecking bones or memorize another Golgotha. Okay, Golgotha. So, and
and this that is why they were killing on me we he wants to make this place a Golgotha। और इसी वजह से वो लोग लड़ रहे हैं क्योंकि वो इस जगह को, इस बैटल फील्ड को क्या बनाना चाहते हैं, गैलगोथा बनाना चाहते हैं। गैलगोथा या वो जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का एग्जीक्यूशन हुआ था, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को टांग दिया गया था, राइट, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। ठीक है, तो यही इसी प्लेस को आप क्या कहते हैं, गैलगोथा। ठीक है, नेक्स्ट, आई कैन नॉट टेल, ओके नाउ ही सेज आई कैन नॉट टेल बट आई एम फेंट, माई गैशेस क्राई फॉर हेल्प। अब क्योंकि जैसे कि सर्जन जो है वो पूरा खून से सना हुआ है, राइट, उससे बहुत सारी चोटें लगी हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं आगे अब नहीं बता सकता किंग डंकन, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आगे नहीं बता सकता क्योंकि मेरी जो चोट है, मेरे जो वुंड्स हैं, ओके, वो मुझे बहुत दर्द दे रहे हैं। ओके, मेरे जो वुंड्स, गैशेस का मतलब होता है वुंड्स, ओके, मेरे जो वुंड्स हैं वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं कि इन्हें अब मरहम की ज़रूरत है, इन्हें अब किसकी ज़रूरत है, मरहम की ज़रूरत है। तो आगे अब मैं नहीं बता सकता, सॉरी किंग डंकन। ओके, नेक्स्ट, ओके, here we go. Duncan says, so when thy words become thee as thy wounds, they smack of honor both, go get him surgeons। means so well you words means जैसे like वो कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने वर्ड्स के ही तरह ब्रेव हो। ओके, तुम्हारे बॉन्ड्स भी, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे बोन्स, जो तुम्हारे बोन्स हैं और तुम्हारे शब्द हैं, वो दोनों बता रहे हैं कि तुम कितने ब्रेव हो। क्या बता रहे हैं? वो जिस तरीके से उसने मैकबेथ की तारीफ़ करी थी, किसने, सार्जेंट ने। ओके, तो वो राजा को बहुत ही पसंद आई। तो राजा कह रहे हैं, किंग डंकन कह रहे हैं कि तुम्हारे बूंड्स और तुम्हारी बातें, जो तुमने बात बताई है, तुम्हारी वे ऑफ टॉकिंग, दोनों बता रही है कि तुम कितने ब्रेव हो, कितने बहादुर हो, कितने साहसी हो और कितनी अच्छी तरीके से तुम लड़े। ओके, जाओ अब तुम डॉक्टर के पास, मतलब दो लोगों से कहता है कि जाओ, मतलब इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, इसकी मरहम पट्टी करा दो, इसकी पट्टी करा दो। ओके, नाउ एग्जिट सर्जेंट एंड अटेंडेंट, जो अटेंडेंट होते हैं जो उसे डॉक्टर के पास ले गए वो, और सार्जेंट जैसे चोट लगी है, दोनों चले जाते हैं। नाउ हेयर कम वन अनदर लाइक द person, okay, here is there's again come like a Than, एक और थैन आते हैं, द थैन ऑफ रॉस। क्या नेम है उनका? द थैन ऑफ रॉस। वो कौन है? द हाई रैंकिंग पर्सनैलिटी ऑफ द रॉस। ठीक है, रॉस कोई जगह है उधर, उसकी हाई रैंकिंग पर्सनैलिटी है। तो अब यहाँ पे रॉस एंटर करते हैं, एंटर रॉस, मैलकॉम जो कि कौन है? बेटा है किंग डंकन का। ठीक है, द वर्दी थैन ऑफ रॉस मीन्स द वर्दी, वर्दी का मतलब होता है ब्रेव, द मतलब एक तरीके से वो उसे फ्रेज कर रहा है, द वर्दी थैन ऑफ रॉस। देन लेनॉक्स, लेनॉक्स द अटेंडेंस, द अटेंडी होता है, एक और वो मतलब पर्सन है, एक और सार्जेंट है। ओके, लेनॉक्स जो दिस लेनॉक्स ही इज़ ऑल्सो अ थैन ऑफ स्कॉटलैंड। कौन है वो? स्कॉटलैंड का थैन है। तो रॉस और लेनॉक्स दोनों आते हैं, मैलकॉम और लेनॉक्स दोनों आते हैं। तो मैलकॉम कहता है द वर्दी थैन ऑफ रॉस, मतलब बहुत ही अच्छे साहसी, मतलब तारीफ कर रहा है एक तरीके से, साहसी थैन ऑफ रॉस। Then Lennox says, what a haste looks through his eyes, so should he took, that seems to speak things strange। मतलब from his eyes, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ, कौन? लेनॉक्स कहता है कि रॉस की आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमें कुछ न्यूज़ देने आया है, कुछ बैटल की न्यूज़ देने आया है, कोई चीज़ बताने आया है। ओके, दैट सीम्स टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज, मतलब कुछ वो स्ट्रेंज बोलने आए हैं, कुछ वियर्ड बोलने आया है वो। ठीक है, देन रॉस सेज, अब रॉस कहता है, व्हाट डज रॉस सेज? गॉड सेव द किंग, मतलब वो ब्लेसिंग दे रहा है कि भगवान किंग डंकन की, भगवान राजा की रक्षा करें। ठीक है, डंकन सेज, वेरेंस केमेस्ट दाउ वर्दी थैन, मतलब आप कहाँ से आए हो? वेयर इज केम दाउ मीन्स वेयर हैव यू केम फ्रॉम,
ठीक है, ये थोड़ी सी इंग्लिश होती है, ओल्ड इंग्लिश विलियम शेक्सपियर की, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक दो प्ले पढ़ेंगे ऐसे ही, जैसे कि हमने मैकबेथ, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है, मैकबेथ पढ़ लिया है, ओके पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, एक प्रेडिक्शन हो जाती है कि हाँ इसे मतलब हम इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। सो वेरिएंस का मतलब होता है वेयर हैव यू केम फ्रॉम वर्दी थेन, मतलब आप कहाँ से आए हैं, जेटलमैन आप कहाँ से आए हैं, वर्दी थेन, थैन मीन्स द थैन ऑफ रॉस, किससे कह रहा है, थैन ऑफ रॉस से। देन रॉस सेज फ्रॉम 5 ग्रेट किंग्स, कहाँ फ्रॉम 5 ग्रेट किंग, कहाँ से आए हैं वो, 5 से आए हैं। 5 क्या है, 5 एक जगह का नाम है, ओके। सो वो आंसर देता है कि आई हैव केम फ्रॉम 5, ओके मैं कहाँ से आया हूँ, 5 से आया हूँ। देन वेयर द नॉर्वेजियन बैनर्स फ्लाउट द स्काई, जहाँ पे मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ पे नॉर्वे के जो फ्लैग्स हैं, बैनर्स, हमने पढ़ा हुआ है किसमें, द पेट्रियट में, है ना, 10th क्लास की पोम थी द पेट्रियट, बैनर के बारे में। व्हाट इज बैनर, बैनर रिफर्स टू द not in that poem, we have read in 9 gold medals, right, by David Roth, उसमें हमने पढ़ा है व्हाट इज बैनर। बैनर होता है फ्लैग, ओके, एक फ्लैग होता है या एक कपड़ा कह सकते हैं, एक बंधा हुआ कपड़ा ऐसे, ओके, किसी चीज़ को बता रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं नॉर्वे के उस पार्ट से आया हूँ जहाँ पे किसका फ्लैग लगा है, जहाँ पे लाइक नॉर्वे का फ्लैग लगा है, ओके। सो फ्लाउट द स्काई, जहाँ पे नॉर्वे का फ्लैग जो है वो उड़ता है, फ्लाउट द स्काई मीन्स हवा में उड़ता है, आसमान में उड़ता है। एंड फैन आर पीपल कोल्ड नाउ नॉर्वे हिमसेल्फ विद टेरिबल नंबर्स, और हमारे जो किंग हैं नॉर्वे हिमसेल्फ का मतलब जो हमारे किंग ऑफ नॉर्वे हैं वो भी घबरा गए हैं, वो भी डर गए हैं इस मैलकॉम से, मैकडोनाल्ड से, सॉरी, ओके। नेक्स्ट, assisted by that most disloyal traitor, the Than of Cawdor began a dismal conflict, मतलब जो थैन ऑफ काउडर है वो सबसे ज़्यादा उसने हमें धोखा दिया है, ओके। डिसमल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स बहुत टेरिबल बैटल वहाँ पे हो रही है, ओके। टिल द बेलोनास ब्राइडग्रूम, कौन है ये बेलोनास ब्राइडग्रूम, हु इज़ दिस बेलोनास ब्राइडग्रूम, मैकबेथ, राइट। सो यहाँ पे कौन, जो रॉस है वो बता रहा है, वो शाबाशी दे रहा है किसे, मैकबेथ को, कि जो बेलोनास ब्राइडग्रूम है मैकबेथ, ही इज लैप्ड इन प्रूव का मतलब लैप हैड इन प्रूव का मतलब है उसने बहुत अपने ऊपर मतलब कवच पहन रखा है, ओके, अपने ऊपर एक कवच पहन रखा है, एक ड्रेस, एक स्ट्रॉन्ग अटायर पहन रखी है, ओके। लैप्ड हैड इन प्रूव का मतलब है उसने अपने ऊपर एक लॉन्ग अटायर पहन रखी है। कॉन्फ्रंटेड हिम विद सेल्फ कंपैरिजन्स, ओके। पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, रिवील हिज आर्म जेंट आर्म, curving his lavish spirit and to conclude the victory fell on us, और वो इतनी अच्छी तरीके से लड़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि विक्ट्री हम पर ही आके गिरेगी, मतलब हमारी ही जीत होगी, किसकी, स्कॉटलैंड की जीत होगी, ठीक है। देन आफ्टर दैट डंकन सेज ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं डंकन, किंग डंकन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ग्रेट हैप्पीनेस रॉस। देन रॉस कहता है दैट वॉज Siuno, that now Siuno the Norway's king crab composition nor would be design him burial of his men, okay। Now the Siuno is the king of Norway, okay, जो Siuno है वो कौन है, king of Norway। so his crabbed composition means वो एक पीस ट्रीटी या पीस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, ओके। नॉर वुड बी डिजाइन हिम ब्यूरियल ऑफ हिज मैन टिल ही डिसबर्स्ड एट सेंट कॉलम्स इन, ओके। यहाँ पे बताया गया है कि उनके पास लोगों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं है,
ये जो सेंट कॉलम्स इंच है, दिस इज एन इन प्लेस, ओके, एक प्लेस है, एक आइसलैंड है, कहाँ पे, कोस्ट ऑफ 5 पे, ओके। तो जो रॉस हैं वो बताना चाह रहे हैं कि उन्हें रुपयों की ज़रूरत है जिससे कि वो लोगों को दफना सकें। ही नीड्स 10,000 जनरल, ही यूज टू, मतलब वो मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात यही कहना चाह रहे हैं कि अगर उनके पास जगह नहीं है, उनके इतने सारे लोग मर चुके हैं, मैकबेथ ने इतने सारे लोगों को मार दिया है, मैकडोनाल्ड के इतने सारे लोगों को मार दिया है, अब उनके पास जगह नहीं है उन लोगों को दफनाने तक की, उनके पास इतनी भी जगह नहीं है कि वो उन लोगों को दफना सके। तो इसीलिए हम उनसे क्या कहेंगे कि वो हमें $10,000 दें, ओके, हमें $10,000 दें जिससे कि हम उन्हें सेंट कॉलम का एरिया दे सकें लोगों को दफनाने के लिए। समझ आ रही बात? क्या कहना चाह रहे हैं रॉस कहना चाह रहे हैं कि उनके पास जगह ही नहीं बची है इतने सारे लोगों को दफनाने की, तो हम उनसे रुपए मांगेंगे कि हमें $10,000 दो और वो जगह ले लो अपने लोगों को दफनाने की। हम इजाज़त नहीं देंगे अपनी जगह पे इन लोगों को दफनाने की, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, द डंकन सेज, no more than Than of Cawdor shall deceive. Our bosom interest go pronounce his present debt. Okay. मतलब no more than Than of Cawdor shall deceive. मतलब अब Than of Cawdor, अब मतलब कुछ ही देर जा रही है, Than of Cawdor भी हारने वाला है, ओके, वो भी डिसीव होने वाला है। आर बॉजम इंटरेस्ट का मतलब है हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हमें बता रहा है कि अब उसकी डेट पास है, अब उसकी डेट होने वाली, किसकी डेट होने वाली है, द थैन ऑफ कॉडर की, ओके, क्योंकि उसने धोखा दे दिया था ना, उसने क्या किया था, उसने धोखा दे दिया था किंग डंकन को। वो पहले तो किंग डंकन के साथ था, फिर उसने धोखा देकर किसके साथ चला गया, किंग ऑफ मैलकोडॉम के साथ, ओके, मैकडोनाल्ड के साथ, ओके। तो किंग ऑफ डंकन कह रहे हैं कि अब कौन हारने वाला है, अब हारने वाला है कौन, थैन ऑफ काउडर, ओके, एंड मैकबेथ विल बी द थैन ऑफ काउडर। और फिर ये जो इस थैन ऑफ काउडर के मरने के बाद ये टाइटल किसे चला जाएगा, मैकबेथ को चला जाएगा, ओके। एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीट मैकबेथ मीन्स, और ये टाइटल जो थैन ऑफ काउडर का टाइटल है वो किसके पास आ जाएगा, मैकबेथ के पास आ जाएगा। मतलब अब मैकबेथ बनेगा थैन ऑफ काउडर, तभी मैकबेथ क्या बनता है, थैन ऑफ ग्लैमिस, तभी वो बनता है फ्यूचर किंग, ठीक है। ये कौन प्रेडिक्ट करता है, ये प्रेडिक्ट करते हैं कौन, द विचेस, जो कि हम पढ़ेंगे अपने एक्ट 1 सीन 3 में कि जब मैकबेथ इंट्रोड्यूस होगा, अभी मैकबेथ आया नहीं है, मैकबेथ हैज़ नॉट कम येट, ओके, वो आएगा एक्ट 1 सीन 3 में, ठीक है, जब विचेस उसे मिलेंगी और विचेस प्रेडिक्ट करेंगी कि आप अभी तो थैन ऑफ काउडर हो, क्योंकि अभी किंग ने बताया, अभी मैंने पढ़ा ना कि किंग ने क्या बनाया है मैकबेथ को, थैन ऑफ काउडर, अब वो बनेगा थैन ऑफ ग्लैमिस, क्या बनेगा, थैन ऑफ ग्लैमिस, that he will be the future king, okay, he will be the next future king। वो प्रेडिक्ट करती हैं, विचेस प्रेडिक्ट करती हैं मैकबेथ और बैंक्यू का फ्यूचर, ओके। नेक्स्ट, डंकन क्या कहते हैं उनसे कि अब मैकबेथ कौन बनेगा, थैन ऑफ काउडर, क्योंकि थैन ऑफ काउडर तो अब मर चुका है, अब उसका टाइटल मैकबेथ को दे दिया जाएगा क्योंकि वो इतना ब्रेव है, उसे यही टाइटल मिलना चाहिए। देन रॉस सेज, I'll see it done means okay, it will do, okay, ये होना चाहिए। मतलब मैकबेथ ने इतनी शाबाशी से, इतनी लाइक अच्छी ब्रेवरी उसने शो करी है अपनी, ओके, तो ये टाइटल तो उसे मिलना ही चाहिए। देन डंकन सेज, what he had lost noble मैकबेथ had born, मतलब जो थैन ऑफ काउडर ने हारा वो मैकबेथ ने जीता है, मीन्स थैन ऑफ काउडर ने क्या हारा, द टाइटल ऑफ थैन ऑफ काउडर, थैन ऑफ काउडर का टाइटल, ओके, थैन ऑफ काउडर का टाइटल हारा है किसने, थैन ऑफ काउडर ने, मतलब जो भी उसका नेम हो अभी यहाँ पे थैन ऑफ काउडर के नाम से उसे इंडिकेट किया गया है, ओके। और कौन जीतेगा इस टाइटल को, मैकबेथ जीतेगा, ओके, मतलब जो थैन ऑफ काउडर ने हारा वो मैकबेथ ने जीता।
और यहीं पे एक्सुएंट मीन्स ये सीन ख़त्म हो जाता है। तो हमने एक्ट 1 सीन 2 भी ख़त्म कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से हमने एक्ट 1 सीन 2 भी ख़त्म कर दिया है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर टू मैनी लॉन्ग टाइम। ओके, इट वॉज लिटिल लेंदी सीन, ओके थोड़ा सा लंबा सीन था, सो इट विल टेक टाइम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से इसमें टाइम लगा। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, ओके, एंड you have to give this video a big thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon as well. So that's it, bye bye, stay tuned for more videos, bye guys, and thank you for being there.